It's getting a huge response from the Yes. audience. So I would like to know first of all how you're getting the response from your friends, from your industry friends. It's been very, very positive, Very honestly, so positive. far. Everybody's loved it, and I Yeah. think has laughed along the way. So that was always our intention, and luckily we managed to do what we wanted to Yeah, and plus do. the film is also like that. It's a very positive, happy, fun-filled, entertaining film. It's a complete, total family entertainer, I would say, and that's what people are really appreciating about it. So we are, as a team, very, Very very happy. happy. And what you see in the trailers, what you're gonna get. Yeah. You will tell us something about your character in the movie. She's happy, I'm also happy. Confusion. But we are not that happy that y'all are thinking. But that's where the confusion begins because she's also Harpreet Kaur, I'm also Harpreet Kaur. And because इसके चक्कर में मैं कहाँ फंस जाती हूँ, कौन किसके आगे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है, बाजू में भाग रहा है, वो आपको फिल्म देखने पर पता चलेगा. But it's a proper comedy caper and total, yeah, comedy you- of errors. Yeah, and if you've seen the first part, then you'll know by now that wherever happy goes, trouble follows. Yeah. So here we are in China, and this time I have caused trouble again. But for this, happy has to bear the brunt of the trouble that I've caused. Yes. So that's what the film's about. Yeah, I saw the first part and I really loved it. I think Diana was fantastic in it as Happy and everybody. I think the thing that the audiences also really loved about the first part was all the characters. Each one was so wonderfully written, etched out. How they had their role to play in taking the story forward. The chemistry between all the characters was really what was loved, and that's what we brought back in this film. So for me to do this film, all the elements that we loved were there, and we were giving something new, which is taking the film to China this time. I was new, Jessie was new, and otherwise everything else was the same. So it was a perfect mix. Amazing. Two happies means what do you expect? It's Double happiness. double happiness. So it was really fun, and because the film is also in the spirit of being this really fun, crazy, quirky film, I think it just added to it to have Sonakshi and Jessie on board with us this time as well, and it just made it double the fun. जैसे कि देखा गया चाइना में शूट हुआ था मूवी शूट की गई मूवी तो चाइना में शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका हमने एक्चुअली बहुत सारी जगहों पर शूट किया. हमने मलेशिया में शूट किया है, बैंकॉक में शूट किया है, चाइना में एक्सटीरियर पोर्शन शूट हुए हैं, अमृतसर में शूट हुआ है, मुंबई में शूट हुआ है. तो ये एक मतलब हमारा टूर हो रहा था जब हम ये फिल्म शूट कर रहे थे. बट कैसे हंसते हंसते कट गया पता भी नहीं चला क्योंकि इतना पॉजिटिव एटमोसफियर था पूरे सेट पर एंड वी जस्ट हैड अ ग्रेट टाइम. मैम जैसे कि आपने कहा कि अलग-अलग जगह पे शूट हुआ है अमृतसर में एक इंसिडेंट हुआ था मुदस्सर सर ने अभी बताया कि जी. आपकी वजह से हर्ट हो गए थे थोड़ा हीरो बन रहे थे ना मुदस्सर सर. हाँ. उसके बारे में थोड़ा सा बता अरे नहीं, हम लोग गोल्डन टेम्पल के बगल में एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर हमारा शूट हो रहा था. एंड जब हम एंटर तो कर गए तब ज़्यादा लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पर शूटिंग होने वाली है. बट जैसे ही पता चला भीड़ इतनी बढ़ गई. ऑनेस्टली मैंने भी इतनी सारी भीड़ पहले नहीं देखी है एक जगह पर. और वो जगह बहुत छोटी छोटी गलियाँ थी वहाँ पर, तो वहाँ पर जब भीड़ आ जाती है तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी सिचुएशन बन चुका था नॉट ओनली फॉर द एक्टर्स बट फॉर द एंटायर यूनिट. तो हमारे डायरेक्टर सर कूद गए मैदान में और उन्होंने सब चीज़ें अपने हाथ में ले ली जैसे वो हर चीज़ लेते हैं. उनको फिल्म लिखनी है, डायरेक्ट करनी है, खुद का असिस्टेंट बनना है, लिरिक्स लिखने हैं, सब करना है उन्हें. तो वो सिक्योरिटी भी बन गए वहाँ पर. एंड नो हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड रियली रियली हेल्प अस और हम वहाँ से सेफली निकल पाए. और थोड़ी सी चोट उन्हें लग गई, किसी ने अपना कोना उनके पीठ में मार दिया. वो घायल हो सका. ओके मैंने ट्रेलर में देखा कि आप कहीं पे कॉमिक भी है कहीं पे सीरियसनेस भी है तो दोनों में से कौन सा डिफिकल्ट पार्ट था यौनर अगर देखा जाए तो आई थिंक मुदस्सर की लिखने की खासियत यही है कि वो कॉमेडी भी जब लिखते हैं तो वो एक होलसम कॉमेडी होता है. वो ना कि माइंडलेस होता है, वो एक लॉजिकल कॉमेडी होता है जिसमें स्टोरी होती है, वो आगे बढ़ती है, इमोशंस होते हैं जो सही जगह पर आते हैं. सो दैट इज़ व्हाट आई रियली लव्ड अबाउट इट. एंड इस फिल्म में इतना हमें सबको इनफैक्ट ये डिस्प्ले करने का मौका मिला, ना सिर्फ कॉमेडी बट इमोशंस एज वेल. मुझे एज अ जॉनर
ऑनेस्टली कॉमेडी बहुत पसंद है क्योंकि आई लव टू लाफ एंड आई लव टू मेक पीपल लाफ, सो इट जस्ट द बेस्ट। मैम हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि इन हैप्पी की वजह से जिमी शेगर को लड़की नहीं मिलती, शादी नहीं होती। अब आपकी वजह से फिर से शादी नहीं हो रही, तो फाइनली शादी हो आपको क्या पता मेरे वजह से नहीं हो रही है? जैसे आपने अजूम कर लिया मेरे वजह से नहीं हो रही है। जो ट्रेलर में हम देख पा रहे हैं, तो फाइनली शादी हो रही है कि नहीं हो रही? बस सब ब्लेम मुझ पर ही डालो। मतलब ये आप मुदस्सर को ब्लेम करो क्योंकि हर फिल्म में वो जिमी सर को घोड़ी पे या तो छोड़ देते हैं या तो मंडप में छोड़ देते हैं, उन्हें लड़की मिलती नहीं है। बट बेस्ट पार्ट है जब ये होता है फिल्म हिट हो जाती है तो हम खुश हैं। अगर लड़की मिलेगी भी तो हम उसे भगा के ले जाएंगे। No, I'm not like a happy at all. She's like a happy. She's a full happy. She might as well just be called happy. Harpreet. That's why we're happy. कैसे हो? Walk around. Yeah, I'm the opposite. I'm not to that extent, but I'm just not as spontaneous and impulsive. I think a lot before I do something or speak, or you know, I'm just Shant more hai, measured and I'm a shant. little more calm than happy. Yeah. Yeah. सोनाक्षी मैम, ये मूवी में एक्टिंग करना आपका एक और एक साइड जो पहले भी देख चुके हैं, वापस से देखने में आप वापस से गाना भी सिंग कर चुके हैं इसमें जी। उसके बारे में क्या कहना है? एज अ रीमेक कितना डिफिकल्ट था आपके? It's a tribute honestly more than anything else, and ये जो गाना है it captures the essence of our film the best I feel, which is Punjab meets China. तो इसे रिकम्पोज किया है सोहेल सेन ने, ना कि हम किसी कोई गाने को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो इतना पॉपुलर है और यू नो चिन चिन चू इमीडिएटली आप चाइना के बारे में सोचते हैं। जिस तरह से पिक्चराइज भी किया गया था हेलन जी पर, यू नो इतनी खूबसूरती से आप चाइना का ख्याल आता ही है। तो पंजाबी बोल भी इस गाने में दिए गए हैं जो जस्सी ने गाए हैं खुद, और चिन चिन चू का जो कोरस पार्ट है जो मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे गाने का मौका मिला। So you know it was an amazing experience. The response has been good so far. Usually, which is not the case in remakes. People really find a lot of things to pinpoint and you know pick on that. Luckily for us, it's not been the case. The response has been very very good, and I'm so happy about that. You know. लास्टली पूछना चाहिए कि हमारे देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी कहना चाहेंगे इसके बारे में? Yeah, it's a very sad day for the entire country, and I'm sure that we are all grieving this loss क्योंकि उन जैसे लोगों की इस देश को बहुत बहुत ज़रूरत है, and he's given this country a lot you know in the past, and we will definitely miss him. I mean, yesterday we lost one of our finest visionaries and one of the most courageous leaders that we ever had. It's because of him that India is, you know, what it is today. Because a lot of historic events happened during his tenure, and so it really is a very sad day. Okay, मैं अच्छा लास्ट पक्का प्रॉमिस, चलो लास्ट पूछ लो। लास्ट क्या कहना चाहेंगे लोगों को? आपकी मूवी आ रही है हैप्पी स्टाइल। अरे ये good काम की question. बात की ना हमने अभी तो हम बैठ के बताएंगे ही। वेल 24 अगस्त को रिलीज हो रही है हैप्पी स्टाइल। हैप्पी स्टाइल। Happy style. हैप्पी तो भाग जाएगी। अभी हैप्पी स्टाइल होगा, ये आंसर करके ही हम दोनों भागने वाले हैं। 24 अगस्त को हैप्पी फिर भाग जाएगी, रिलीजेस इन द थिएटर्स। प्लीज गो एंड वॉच इट, एंड आई एम श्योर कि आप सबको बहुत मजा आएगा। चलो अब भाग हैप्पी। सर आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से। पहले तो ये जानना चाहिए कि आपको पर्सनली कैसे कैसे कमेंट्स मिले इंडस्ट्री से, आपके फ्रेंड फैमिली से? बहुत अच्छे कमेंट्स मिले हैं, मज़ा आ रहा है। लोगों को एक मस्ती है, एक मौज है जो देख के मज़ा आ रहा है ट्रेलर। तो आई थिंक और पहला पार्ट लोगों ने जब देखा होता है और उनको उनकी उम्मीदें होती हैं कि भाई कुछ ऐसा होगा और मज़ा आएगा। तो 24 तारीख को हो रही है पिक्चर रिलीज़, बाकी तो 24 को पता लग जाएगा। मेरी पहली फिल्म है तो मैं बहुत एक्साइटेड था जिस दिन ट्रेलर आना था, क्योंकि
मेरे घर वाले, सारी फैमिली, सारे फ्रेंड्स, उन्होंने पहली बार देखना था मुझे, तो उनका सबका रिएक्शन यही था कि वो पंजाबी फिल्में ज़्यादा देखते हैं, तो उनको ये लगा कि यार ये तो उससे भी अच्छी चीज़ है। एक तो बॉलीवुड में डेब्यू हो रहा है उनके लड़के का, और इतनी अच्छी फिल्म, इतनी अच्छी स्टार कास्ट, इतना अच्छा, और ट्रेलर का रिस्पांस। मैं जब इससे पहले ही मैंने एक दो बार बात हुई मीडिया से, तो मैं यही बोलता हूँ कि आपको पूछना नहीं पड़ता जाके कि ट्रेलर कैसा लगा, लोग खुद आके आपको बोलते हैं कि यार बड़ा अच्छा ट्रेलर। तो इस दोनों चीज़ों में आपको फ़र्क आप खुद ही महसूस हो जाता है कि हाँ, एक खुद आपको पूछना पड़ता है जाके, लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा है। तो उम्मीदें बहुत हैं 24 तारीख को। कंफ्यूज नहीं हुए थोड़ा लोग बोल के, आप तो बोल रहे थे हिंदी पिक्चर कर रहे हो, तो इसमें आप चाइनीज़ बोल रहे थे? हाँ, नहीं, ऑलरेडी पहले स्नैपचैट अभी सब चलता है ना बाजी, उससे क्लियर कर दिया था कि चाइनीज़ थोड़ी है इसमें। नहीं, मैं हमेशा जिमी सर से भी ये बात मैं कर रहा था कल जब हम इंटरव्यूज़ कर रहे थे, कि अक्सर हमारे हर इंटरव्यू की शुरुआत, टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, किसी न किसी आप लोगों के प्यार से ही होती है। कि पहला सवाल हमसे यही पूछा जाता है कि सर ट्रेलर हमको बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को क्या रिस्पॉन्स इसका मिल रहा है। तो ये एक बहुत हार्टनिंग चीज़ होती है किसी डायरेक्टर के लिए, बहुत मेहनत जुड़ी होती है एक फिल्म से, हर फिल्म से जुड़ी होती है, मगर बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का प्रेम मिलता है, दर्शकों का प्रेम मिलता है। जी सर, आपसे जानना चाहिए, आपने बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए अब तक के जर्नी में, तो कॉमेडी करना कितना डिफिकल्ट रहा दूसरे जॉनर से अगर कंपेयर करें? मुझे बहुत मज़ा आता है यार कॉमेडी करने में। मैं तो चाहता हूँ कि और अच्छे रोल मिलें थोड़ी हल्की फिल्मों में, तो और थोड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि ये तो एक ऐसा किरदार है जो पहले पार्ट में लोगों ने देखा हुआ है, बग्गे का किरदार, और लोगों को मज़ा आया। हमने ये सोच के नहीं की थी पहली वाली कि इतना कमाल का रिस्पॉन्स मिलेगा, मगर फिर जब आप दूसरा पार्ट करने जाते हो तो फिर आपको उम्मीदें होती हैं कि अब लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि उससे बेटर, और ये मैं वादा करता हूँ कि इसमें मिलेगा वो मज़ा जो है वो सेकंड पार्ट में और ज़्यादा मिलेगा लोगों को। तो कहानी ने मोड़ ऐसा लिया कि कहानी पाकिस्तान से बाहर आ गई, तो बिलाल अहमद और जोया जो हैं, मोमल शेख भी आपको नहीं दिख रही होंगी कहीं, बिलाल अहमद और जोया जो हैं वो क्योंकि पाकिस्तान में छूट गए और कहानी चाइना की तरफ निकल गई, तो इसलिए आप उनको मिसिंग पा रहे हैं। मगर एक कमाल की बात मैं आपको इस फिल्म के बारे में बता दूं कि ये बिलाल अहमद का किया हुआ कांड है जिसकी वजह से हैप्पी फिर भाग जाएगी का प्लॉट है। तो वो अभय देओल आपको फिल्म में ओमनी प्रेजेंट लगेंगे थ्रू आउट। ओके, जैसे सर आपकी ये डेब्यू मूवी है, तो कितने नर्वस फील कर रहे हैं, और क्योंकि इतने दिग्गज कलाकार हैं, जिमी सर है, सोनाक्षी है, डायना है जी, तो कितना नर्वस फील कर रहे थे पहले जब आपका टेक शॉट? जब पहले शुरू करना था उस टाइम था थोड़ा बहुत दिल में था कि पता नहीं, एक तो मुझे पता नहीं कैसे काम होता है यहाँ पे, बॉलीवुड इंडस्ट्री की पहली फिल्म थी, तो इतने बड़े बड़े स्टार के साथ काम करना था, तो दिल में ये था कि ये ना सोचें कि किसको पकड़ के ले आए हैं सर यहाँ, इसको मुझे पता नहीं था इस चीज़ का। तो पर जब हमने एक दो दिन शूट किया तो उसके बाद, क्योंकि माहौल सेट का ऐसा था, सब इतने पॉजिटिव लोग, सब इतने सपोर्टिव, हर बंदा, जिमी पाजी, पीयूष जी, सब डायरेक्टर सर, मुदस्सिर सर, सब ने इतना सपोर्ट किया कि फिर ये फील अपने आप निकल गई दिल से। तो अभी तो मैं एक्साइटेड हूँ, अभी नर्वस नहीं हूँ उतना। अभी तो मुझे ये है कि कब 24 तारीख आए और कब लोग फिल्म देखें और बोलें कि यार मज़ा आ गया। क्योंकि पर्सनली आपसे जानना चाहेंगे आपके परिवार का क्या टेक था जब ये डायलॉग आपने सुना लगा ट्रेलर में, तू गिल है तो मैं शेरगिल हूँ, तो क्या टेक, मतलब क्या था रिस्पॉन्स? मेरे बहुत सारे और भी दोस्त हैं शेरगिल हैं, तो वो मेरे को खुद ही भेज रहे हैं कि अगर तू गिल है तो हम शेरगिल हैं। तो ये पंजाब में हम सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, शेरगिल गिल एक सरनेम, सेम पीछे से फैमिली एक है। तो क्या है कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, गिल शेरगिल बहुत आम सरनेम है वहाँ पे, तो ये उनको एक नई चीज़ मिल गई है सबको बोलने के लिए कि अगर तू गिल है तो मैं शेरगिल हूँ। सोनाक्षी जी से अभी बात की तो उन्होंने कहा क्या में एक डायरेक्टर के अलावा एक बॉडीगार्ड भी दिखा है हमारी ये मूवी में, एक इंसिडेंट हुआ था अमृतसर में, तो उसके बारे में आप कुछ बता सके? वो इंसिडेंट ऐसा हो गया था कि एक शॉट हमने लेना था जहाँ पे उनका जो किरदार है हैप्पी की, क्योंकि शादी होने वाली है, तो वो उसकी शॉपिंग करने के लिए बाज़ार में, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितना रियल इन्वायरमेंट दे सकूँ उतना देने की कोशिश करूँ। तो हमने अमृतसर पे एक बाज़ार है जिसकी तंग गलियाँ हैं बहुत, वहाँ पे वो शॉट लेने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया, और जब तक हम शॉट रेडी कर पाते तब तक लोगों का इतना हुजूम हो गया वहाँ पे कि वो शॉट लेना बहुत मुश्किल हो गया शाम के वक्त में।
तो हमने फिर डिसाइड किया कि ये तो लोग आ जाएंगे शॉट में, ये शॉट नहीं करते हैं, इसको हम दोबारा कर लेंगे बिना बताए या थोड़ा सा बेटर प्लान करके। तो मैं उनको गाड़ी की तरफ ले जा रहा था और कुछ एक लोग थे जो शायद उनकी तस्वीर खींचना चाह रहे थे, तो शायद उनके फ्रेम में मैं आ रहा था, तो उसमें एक भाई थोड़े से अपसेट हो गए थे, तो उन्होंने धर दिया था यहाँ पे। तो सर आपने पूछा था कि तन्मय टुल्लू में आपकी शादी नहीं हुई, नक्की भाग जाएगी में भी आपकी शादी नहीं, कब होगी आपकी शादी? सर आपकी आंखों में आंसू देख के मुझे खुशी होती है कि आप ये पूछते हुए जो आंसू हैं आपकी आंखों में दिख रहे हैं मुझे, तो अच्छा है। ना हो शादी तो कहानियाँ बनती रहेंगी, अच्छी बात है। सोनम जी ने बोला आपकी जब शादी में होगी फीचर हिट होगा। क्या बात है, ये अच्छी बात है सर। ये भी फिल्म जो है वो हिट हो जाए, बढ़िया है, क्योंकि अगर कोई फिल्म डिजर्व करती है हिट होना तो आई थिंक ये वाली फिल्म करती है। Well, I mean, to answer your question, improving relationships between countries is not really the responsibility of cinema, but cinema can contribute towards it. And I feel that 70 साल से लड़ रहे हैं, कोई फ़ायदा तो नज़र नहीं आया मुझे अब तक। तो अगर हंसी मजाक करके देख लिया जाए तो शायद उसका कोई अच्छा हल निकल आए। ओके सर, पहले तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, दूसरे को भी बहुत ही अच्छा ट्रेलर को रिस्पांस मिल रहा है और ज़रूर हिट भी होगी। थर्ड के ऊपर भी हमने सुना है कि काम शुरू हो चुका है, अगर उसके बारे में पता है, और कहीं ना कहीं करीना कपूर का भी इसमें रोल है प्ले करने वाली। नहीं, ये आप लोगों की मुस्तैदी की वजह से ये खबर फैली है। दरअसल ये ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी फिल्म के लिए सबसे पहले मैं ये मानता हूँ और बेहद विनम्रता से हाथ जोड़ करके कि किसी भी फिल्म के लिए पहले दर्शकों का प्यार मिलना ज़रूरी होता है। किसी भी फिल्म मेकर को ये बोलता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए कि फिल्म अब तक रिलीज़ भी नहीं हुई और वो अगली सीक्वल की बात कर रहा हो या वड़े। तो इस वक्त जो है वो हरगिज़ हमारा प्लान नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस फिल्म को उतना प्यार और उससे दुगना प्यार जितनी पहली फिल्म को मिला था वो एक बार इसको मिल जाए। फिर उसके बाद जो है ऊपर वाले ने चाहा तो क्यों नहीं हैप्पियाँ बनाते रहेंगे। जब तक आप हैप्पी हो रहे हैं हैप्पी से तब तक बनाते रहेंगे। नहीं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा बॉलीवुड में डेब्यू हो रहा है इसी फिल्म से, और इसी फिल्म से मेरे गाने से भी डेब्यू हो रहा है। मेरा पहला गाना है बॉलीवुड में। वो जब मुझे सुनाया तो उसमें एक पंजाबी टच था जो मुझे लगा कि हाँ मुझे सूट करता है, मेरी वोकल्स को सूट करता है। तो हमने गाया वो स्टूडियो में, वो बहुत अच्छा गया। वो नचदी तां लगदी है कैंट सोना, आके थे मेरे कोले बैठ सोना, हाँ अखियाँ कर गई जादू टोना, लफसा हो गया होना पौना, लाइफ सेट हो जानी है जे सेट हो जानी तू, मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी मैं यार तू, हेलो मुंडिया हाउ डू यू डू। लास्ट पूछना चाहेंगे यस्टरडे वी लूड और आई थिंक हाँ, इट्स अ सैड थिंग, बट वन पर्सन जिनको इतना प्यार लोग देते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि उनकी ही पार्टी के लोग। वो एक ऐसे इंसान थे जिनको सब पॉलिटिशियंस जो हैं वो बहुत रिस्पेक्ट देते थे, सारा कुछ करते थे। तो इट्स अ बिग लॉस, और आई वुड ओनली से दैट यू नो गॉड गिव द फैमिली द स्ट्रेंथ टू बेयर दिस ह्यूज लॉस। अबाउट द सेम क्वेश्चन। बेहद दुखद समाचार है, और मैं एक खैर स्टेट्समैन तो वो सबके लिए और पॉलिटिशियन सबके लिए एक आला दर्जे के साबित हुए अपनी पूरी ज़िंदगी। बेहद अच्छे कवि भी थे। तो एक दूसरा एसोसिएशन मैं उनकी शख्सियत से फील करता हूँ क्योंकि मैं लिखता हूँ, और इट्स अ ह्यूज लॉस टू द कंट्री, एन इनएविटेबल वन बिकॉज दैट इज़ द नेचर ऑफ लाइफ, but nevertheless a very huge loss and irreparable loss. जी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो मैं बहुत छोटा था, पर मैं जितना उनके बारे में सुना है तो मुझे घर वालों से या सीनियर से यही पता चला कि वो बहुत अच्छे इंसान थे।
और बहुत कुछ किया है। ऐसे लोगों की अपने देश को उनके एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है और हमेशा रहेगी, तो बड़ा दुख है। थैंक यू एवरीवन।